Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. Assalamu alaikum. We are starting CISA domain 5 today, protection of information assets. This is again my intro. मैंने पिछली lectures में भी दिया था. I am doing MBA executive from LUMS, MS Information Security, and few of the certification is from ISACA, from PMI, or from some other bodies. Part A is bit lengthy. Domain 5 का जो part A है वो थोड़ा सा lengthy है. Today might वो हमें थोड़ा सा time ऊपर लग जाए, 1 घंटे से शायद 1.25 घंटा लग जाए. ये part थोड़ा सा lengthy है. इसमें हम cover करेंगे information asset security framework, standard guidelines, privacy principles, access and environmental control, identity and access management, network and endpoint security, data classification, data encryption and encryption related issues, and some encryption as well, PKI, web communication technologies, virtualized environment, and some mobile wireless IoTs, etc. And in next week, or I will confirm tomorrow कि हमारा next week से session होता है Friday या Saturday को. उसमें हम security awareness training programs and information system attack methods, security testing tools and techniques, and evidence collection techniques, incident response techniques, इस पे बात करेंगे. तो हम part A start करते हैं. Information asset security and control. So सबसे पहले इन्होंने बताया what is information security. As we all know, information security is all about the CIA, which is confidentiality, integrity, and availability. You have to best tune your asset among these three principles. For example, अगर आपकी banking application है, उसको आपने ऐसे ट्यून करना है कि अवेलेबिलिटी कंप्रोमाइज ना हो, तो आपकी बॉल जो है, जो ट्रिगर है, वो अवेलेबिलिटी की तरफ जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू कवर द इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एज वेल. और किसी चीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करती है, उसकी अवेलेबिलिटी इतना मैटर नहीं करती, तो हमारा जो पॉइंट है ऑफ द एसेट वो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी की तरफ डिप डाउन कर जाता है, और बाकी चीज़ों की शायद हम इतनी वैल्यू नहीं करते. एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ नीडेड ऑल द टाइम्स. कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से थोड़ी सी ब्रेक ले सकें. It should be in all the forms and in all the locations. All the form means information security on a broader side. मतलब फॉर एग्जांपल आपके नॉन आईटी जो एसेट्स हैं उनको भी रिक्वायर होता है टू प्रोटेक्ट इन ऑल द लोकेशंस. आपकी रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, आप प्राइमरी साइट या ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस से हट के आपके साइड ऑफिसेज या आपकी जो ईमेल इन ट्रांजिट है या इंफॉर्मेशन इन ट्रांजिट है, आपको उसको भी सिक्योर करना होता है इन ऑल फॉर्म, इन ऑल लोकेशंस. We have to monitor the security environment to actually gauge the security postures. हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस लगे होते हैं, उस बेस पे हम जज कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली जज कर रहे होते हैं टू बिल्ड सम सिक्योरिटी पोस्चर दैट और होलिस्टिक व्यू, ताकि हम उसका एक होलिस्टिक व्यू देख सकें, हाउ प्रोटेक्टेड वी आर. Ensure vulnerabilities are patched and addressed. Vulnerabilities के बारे में तो रेगुलेटरी भी आजकल बहुत कहना शुरू हो गया है, इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान में भी. Even we have automated solution to fix this vulnerability and patch managements. Detect and respond to the to attack. Attack detection is important, and even to respond it is important. Controlling access to IT assets. Information security management, some key tasks are evaluate policies and procedures,
physical and environmental security, logical security, data classification, protection of information assets, alignment of security with the business objective. This is not all, this is not the least. हमारे पास इसके अलावा भी बहुत सारे टास्क आते हैं, but these are some key tasks. Now next, जो इसाका मैनुअल के मुताबिक they are actually telling us the intrinsic value of data. Intrinsic का उर्दू में मीनिंग अंदरूनी होता है, अंदरूनी वैल्यू. डाटा की एक्चुअल वैल्यू क्या है? डाटा शुड बी एक्यूरेट. एक्यूरेट मीन रिलायबल. फॉर एग्जांपल डाटा की रिलायबिलिटी अगर क्वेश्चन करती है तो दैट इज समहाउ हम डाटा को एक्चुअल उसकी वर्थ नहीं रखता वो डाटा. And data should be objective. It should be objective. It should be unbiased. Data should be believable. It should be based on the constraint that are true and credible. And it should be data should have some reputation. Means it should come from the trusted source. One more thing. Yes, data has some contextual value. Contextual value means, context means सियाको सबाक को कहते हैं उर्दू में. Data should have some context value as well. All of the sudden एक आइस ब्रेकर की तरह कोई चीज़ सामने ना आए. जो आपका डाटा में बात कर रहे हो, जिस डाटा के मुतल्लिक बात की जा रही हो उसके मुतल्लिक सामने सारी चीज़ें आनी चाहिए. Data should be intangible and clear. That should have some relevance to this topic. It should be applicable to the task at hand. Data should be complete. It has sufficient depth and breadth. Data should have the currency. Currency means data should be updated, up to date. Data should be appropriate, in appropriate amount, in appropriate quantity. Data should be concise. It should be compact. ऐसा लंबा जोड़ा डाटा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे आप उसका फोकस लूज कर जाएं. It should be consistent. Consistent means it should be in the same format. It should have interoperability. Means it should have clear definitions. It should be understandable, comprehended, and it should be easy to manipulate. Easy for manipulation, easy to handle tasks with them. These are some contextual value of data. So in that data we should do information security management for overall to protect the data, protect the our logical as well as our tangible and intangible assets. Information security management, we have majorly three categories. One is technical, which is technical and logical controls. One is managerial, that come उसके अंदर हमारे पास administrative control आते हैं. उसके बाद physical controls आते हैं. Physical में environmental and ऑपरेशनल कंट्रोल्स. इसी तरीके से अगर हम एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की बात करें, जैसे ISO 27001 की बात करूं मैं, तो उसमें जो कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं कंट्रोल की, देयर आर 35 कैटेगरीज. एंड अगर मैं कंट्रोल का काउंट करूं तो कंट्रोल के काउंट हैं 114. तो हमारे पास जो मेजर चीज़ आती है वो कैटेगरी में डिफाइन करना है. और अगर उन 35 कैटेगरीज को भी मैं उनका हाई लेवल देखूं तो वो अगेन it is fallen under the three categories, that is technical, managerial and physical. Key element of information security program. यहाँ पर हम प्रोग्राम की बात करेंगे. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एज अ प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे. इट शुड बी अ प्रोग्राम. प्रोग्राम में हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट लीडरशिप होनी चाहिए. पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड बी डिफाइंड. सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन provided to even employees and as well as vendors, as well as for the third party as well. Organization roles and responsibilities should be correctly defined. Risk management के procedure होने चाहिए. Procedure के साथ साथ implementation भी होनी चाहिए. Monitoring, compliance and incident handling and response.
roles and responsibilities. Information security is the responsibility of everyone inside the organization. Even the security guard has some responsibilities regarding to information security. Information security की अगर मैं हायरार्की देखूं तो उसमें स्टीयरिंग कमेटी है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, विच में दैट कंटेन CIO, CISO, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, बिजनेस ओनर, सिस्टम ओनर्स हैं, एक्सटर्नल पार्टीज हैं, IT डेवलपर, यूजर्स, IS ऑडिटर्स, और भी हो सकते हैं इसके अलावा भी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। क्लासिफिकेशन, आप अपने इंफॉर्मेशन एसेट की क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप उस स्पेसिफिक एसेट की वैल्यू जज कर सकते हो। वैल्यू कैन बी इंट्रिंसिक और कैन बी कंटेक्चुअल। उस वैल्यू पे डिपेंड करते हुए हम कंट्रोल डिफाइन करते हैं। That is protection of sensitive and critical information, information inventory and labeling. आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके पास end to end inventory होनी चाहिए, should be labeled. आपके पास specific rule for each class of data. क्लासिफिकेशन में अगर फॉर एग्जांपल आपने 4 पॉइंट पे क्लासिफिकेशन की है तो हर जो पॉइंट होगा उसके डिफरेंट रूल डिफाइन होंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्रिटिकल एसेट्स कुछ मार्क किए हैं तो क्रिटिकल के कंट्रोल डिफरेंट होंगे। अगर आपने समहाउ मीडियम लेवल के कुछ डिफाइन किए तो मीडियम लेवल के कंट्रोल डिफरेंट होंगे। देयर शुड बी अ रूल फॉर ईच क्लास ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन इज एक कंसेप्ट पाया जाता है पाकिस्तान में भी इवन दैट the classification is done by only and only information security department, which is wrong because आप खुद भी अपने आप को जज करें एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर आप इवन इन IT साइट पे बैठे हो तो हाउ यू कैन जज द वैल्यू ऑफ HR डेटा और अकाउंट्स डेटा और सम सप्लाई चेन डेटा, तो दैट वैल्यू वो तो उसी डिपार्टमेंट को ही पता होती है, उसी इंफॉर्मेशन ओनर को पता होती है। कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, reduce the cost of protection, reduce the liability of under protection. लीगल रिक्वायरमेंट हम इससे कवर कर लेते हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कवर कर लेते हैं और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट भी कवर करते हैं, लाइक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल आर प्रोएक्टिव, दैट इज प्रोएक्टिव में डायरेक्टिव आ जाते हैं, प्रिवेंटिव आ जाते हैं और डेटरेंट आ जाते हैं। रिएक्टिव में रिएक्टिव are detective, corrective and recovery, and compensating are layered defense. यूजुअली हमारे पास अगर कोई इंसिडेंट आ जाए तो हम रिएक्टिवली उसे फिक्स करवा रहे होते हैं। अगर कोई अटैक हो रहा हो तो दैट इज कम अंडर रिएक्टिव। और इन नॉर्मल सिचुएशन अगर आप अपने डिफेंस को तवज्जो दे रहे होते हैं या अपनी लगाए जाते हैं किसी भी इंटरप्राइज नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंट्रोल फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क इन ऑडिट। 1 minute, I have one question. Okay. These are science solution। आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल डायग्राम आएगी। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल पढ़नी है तो स्प्लंक के लेक्चर अवेलेबल हैं सेम चैनल पे। सिस्टम एक्सेस, सिस्टम एक्सेस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स आर रीड, राइट, एग्जीक्यूट, फुल, कंट्रोल, डिलीट और यू कैन क्रिएट, और इसके अलावा भी हो सकते हैं।
एक्सेस कंट्रोल लगाने के लिए हम फिजिकल कंट्रोल लगाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंट्रोल लगाते हैं, एप्लीकेशन पे है, और सेंट्रल मैनेजमेंट भी इसका एक कंपोनेंट है। एक्सेस रूल इट इज़ आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इट शुड बी यूनिक, रोल बेस्ड होने चाहिए, और लॉगिंग एंड ट्रैकिंग एक्टिविटी, दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बोथ. For example, who is accessing the data, at what time he is accessing the data, and from where he is accessing the data. ठीक है, these are some rules like who, where, when is going to get some data or even process some data. Authentication, verification or validation of the identity is called authentication. What you know, what you have, and what you are, these are somehow जिसे हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स जिसकी बेस पे हम ऑथेंटिकेशन करवा रहे होते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, इट शुड बी 2FA एज वेल. और दिस डायग्राम आपको ये बता सकती है कि ये 2FA की एग्जांपल है. आप अगर यूज़र नेम पासवर्ड देते हो, आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होता है अगेन 2FA, और देन you can get access to some system. टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. एक्सेस कंट्रोल जब भी आप किसी को एक्सेस दे रहे होते हो, इवन एंटरप्राइज पे, तो ये काफ़ी हद तक एप्लीकेबल चीज़ है कि किसी को एक्सेस दी, इट शुड बी बेस्ड टाइम बाउंड, इट शुड बी टाइम बाउंड. एक्सेस रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द टाइम of the days or day of the week. Must also restrict access based on the location. Trusted path administrator support. टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में कई सारे चैलेंजेस भी आते हैं, बिकॉज हमारे पास कोई एक्सेस रिवोकेशन का मेथड नहीं होता अनलेस वी डिडंट येट इम्प्लीमेंटेड सम ऑटोमेटेड टूल. अगर आपके पास कोई ऑटोमेटेड टूल ना हो तो वहाँ आपके पास रिवोकेशन में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं. एक्सेस ग्रांट तो कर देती की जाती है, लेकिन एक्सेस रिवोक करते हुए प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, या इवन एक्सेस दे दी जाती है और एट द सेम टाइम एक यूज़र का रोल चेंज हो जाता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट पे वो जो नए एक्सेसेस गेन कर रहा है, तो पुराने वाले प्रिविलेजेस को साथ एंजॉय करता हुआ नेक्स्ट में ले जाता है. तो आफ्टर फ्यू ईयर्स जैसे ही उसकी जॉब में 3-4 रोटेशंस हो जाती हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके बाद आप जब उसकी एक्सेसेस का ऑडिट कर रहे हो, applying access to various stakeholders. Stakeholder are user, customer, business partner, contractor, consultant and auditors. इन सब की एक्सेस का लेवल डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल, अगर ऑपरेशंस में कोई टीम बैठी है तो उसकी एक्सेस का लेवल डिफरेंट होगा, और एप्लीकेशन ओनर होगा. हमें टाइम बेस के हिसाब से और लोकेशन बेस के हिसाब से बाउंड करना चाहिए to protect our assets. Data has a life cycle, like even human being has a life cycle, even that identity has a life cycle. Identity हम create करते हैं, उसको enable करते हैं, उसको exit कराते हैं. create करते हैं, उसको password set किया जाता है, credential set किए जाते हैं, request उसकी होती है to provide some access उसको प्रोवाइड करने के बाद उसकी जैसे ही 2016 के बाद से हमारे पास, जब से GDPR आया तब से डाटा प्राइवेसी के बारे में वर्ड ज़्यादा हो गए. उससे पहले थोड़ा सा मतलब बोला जाता था डाटा प्राइवेसी के बारे में, लेकिन इसका हॉट टॉपिक नहीं था.
जैसे GDPR इम्प्लीमेंट ट्रांस बॉर्डर डाटा फ्लो करता है आपका फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। वहाँ पास अगर एक डिफरेंट हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम एप्लीकेबल हैं, सेम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन USA और यूरोप। दैट वे आपके डाटा प्राइवेसी लॉ भी डिफर करते हैं। फॉर एग्जांपल के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, इवन बड़े बड़े कर जाते हैं करते हो डाटा का, तो हमारे कल्चर के मुताबिक प्राइवेसी रूल्स privacy should be built in by design. It built in the infrastructure, masking of policy of data collection and use. PII के बारे में personally identifiable information, any information जिससे आप directly or that is called personally identifiable information. इसके बारे में डिटेल पढ़ने के लिए देयर इज अ ISO स्टैंडर्ड IAM। हमारे पास अगर आप GDPR के थोड़ी सी अगर आप उसकी स्टडी करें तो उसके अंदर भी आपको PII का एक लंबा चौड़ा पोर्शन मिलता है। उसके अंदर आपको हर तरह का बता दिया जाता है कि कुकीज आर अगेन then again categorized under the PII. Identity and individual of on their location, often based on aggregation of data, data ownership, legal and regulatory requirement, tracking and consistency of protection may also be industry PHI. PII में आपका हर किस्म का डेटा आ सकता है, even your cookie information, even your way of browsing, even your choice of words, even your test vector of information security. Widely recognized as one of the most important factors in success of information security program are knowledge of policies, risk and responsibilities and create the accountability. आपके पास नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज होने के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नॉलेज को शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टेक होल्डर्स एंड अगेन जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लगाई जाती और जब तक आपके पेनलाइजेशन नहीं की जाती तब तक प्रॉब्लम आते हैं फॉर सक्सेस इन द सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम. Social engineering. Social engineering is not somehow technical, but it is widely in use. There is no technical cure for the social engineering. Somehow people are appealing for help, and there should be a mediation or something like that. उसके बाद ये चीज़ अचीव की जाती है. Even lot of security agencies are doing this type of stuff. और इसकी काफ़ी सारी examples भी हैं. Today I am facing problems. Okay. Security is everyone's job. जिस तरह मैंने पहले भी बताया, security is not the responsibility of information security department. It should be a responsibility of everyone. Create a culture of security policy. Senior management must support the awareness training program. Senior management की support होनी चाहिए
and it is the responsibility of everyone, even the security guard of your company, and even the janitorial staff, or everyone, should be conducted annually, tailored to the audience. Advantage of awareness training. Staff are alert and watchful for any problem. Awareness training के advantages की बात हो रही है. आपका IT help desk बड़ा alert हो जाता है and watchful for the problem. Staff are often first to be aware of the problem, educate and how to respond and report a breach or suspicious activity. इवन GDPR में तो ये ब्रीचेस के बारे में बताया गया है कि इतनी डेडलाइन में डेटा सब्जेक्ट को बताना है. डेटा सब्जेक्ट इज एक्चुअली ओनर ऑफ द डेटा. Awareness on different topic, supply chain. एक्सटर्नल में तो यूजली सभी लोग जज कर रहे होते हैं, बट सप्लाई चेन आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, आपके जो इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो आपको कंटिन्यूस सप्लाईज दे रहे होते हैं, इवन कंसल्टेंट और क्लियरिंग और मेंटेनेंस स्टाफ जो आपको कंटिन्यूस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. रिस्क एंड कंट्रोल फॉर एक्सटर्नल parties. Loss of information, theft, failure to deliver on contracts, escorts required, visitor logs, and non-disclosure. Okay. Customers. Who are the customers? Customers actually are process. आपके इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट. थर्ड पार्टी में काफ़ी सारे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड्स में, थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट शुड बी एडेड इन दैट. Follow to ensure the delivery of contracted services. Follow up to ensure. आप follow up करते हो on the SLAs की जो ब्रीचेस होती हैं, वो एक्चुअली क्योर करती हैं फॉर द डिलीवरी. तो उसका that is removal of excesses, deletion from organizations data, formal sign of documentation delivered, jurisdiction in event of dispute. अगर dispute होता है तो what is the agreement,
वो आपके पास पॉलिसीज कौन सी होती हैं, पॉलिसीज इन फॉर्म ऑफ प्रोसीजर और इन फॉर्म ऑफ एक्सेस, ये सारी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हॉलीडे छुट्टियां लेने की पॉलिसी आ गई, लीव लेने की पॉलिसी है, आपका बोनस लेने की पॉलिसी है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशन और वैलिडेशन ऑफ सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। राइट नाउ सर्टिफिकेशन या एक्सपीरियंस को जज करने के लिए सर्टिफिकेशन का तो सिंपल है कि उसके लाइसेंस नंबर पे उसी वेंडर की वेबसाइट से पता चल रहा होता है। बाजू का एक्सपीरियंस उसकी पुरानी कंपनी को कॉल करके लिया जाता है। एजुकेशन भी आपकी जो एजुकेशन बॉडी रिवॉर्ड करती है उस वहीं से पता कराया जा सकता है आइदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म एंड कंडीशन में आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी आ सकती है, एक्सेप्टेबल यूज़ है। फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए आप कुछ एनडीएज भी दे सकते हैं या फ्रॉड प्रिवेंशन की क्लॉजेस भी लगा सकते हैं। जिस तरह एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट अगर आपकी इवन आपके पास भी होगा तो आप उसको अगर डिटेल से पढ़ें तो देर 2-3 पेजेस का होता है और 2-3 पेजेस में बहुत कुछ लिखा होता है एचआर वालों ने। during the employment maintain the correct level of access, uh, enforce least privilege, separation of duties, measure effectiveness of control, not conflict of interest, and maintain awareness of computer crimes. Computer crime can be made through botnets. Botnets actually, आप इसका positive फायदा लेना चाहें तो एक different फायदा है, but usually in this era, it is used for crime. And then malware, spyware, adware, DDoS है, eavesdropping, dropping है, spamming, masquerading, spoofing, man-in-the-middle attack, packet replay, piggybacking, and remote access. These are the technologies from where we can even the hackers or malicious mind person can do the computer crimes. Type of incident, either it is a natural come from fire, flood, or some environmental problems. Loss of equipment or data, loss of even electricity is a problem for the incident. Loss even the theft of equipment is a problem. Breach of theft of the equipment. Incident response phases. इंसिडेंट रिस्पॉन्स के अंदर आप प्रिपरेशन करते हो, डिटेक्शन एंड एनालिसिस, कंटेनमेंट, एरेडिकेशन एंड डिस्कवरी, एंड पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटीज. These are the phases. प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन, डिटेक्शन हो रही होती है, एनालाइजेशन, कंटेन कर रहे होते हो, कंटेनमेंट की एक्टिविटी है, रिस्टोरेशन है, आखिरी चीज है लेसन लर्न इसलिए इम्पोर्टेंट आप बाकी सिस्टम्स पे डिप्लॉय कर देते हो ताकि नेक्स्ट सेम इंसिडेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे करना हो. इंसिडेंट टीम मेंबर्स, कोई भी इंसिडेंट रिकवरी के लिए आपके पास कोई कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन इम्पोर्टेंट. आफ्टर जीडीपीआर में डाटा सब्जेक्ट को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है विद इन 48 आवर्स ऑफ द डाटा ब्रीच. और अगर किसी वजह से उनको डाटा सब्जेक्ट को डाटा, फॉर एग्जांपल मेरा डाटा प्रोसेस हो रहा है तो आई एम द डाटा सब्जेक्ट, तो अगर मुझे किसी भी ब्रीच के 48 आवर के अंदर नहीं बताया जाता तो दैट कंपनी हु इज प्रोसेसिंग द डाटा विल बी पेनलाइज्ड फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री और रेगुलेटरी. So communication is important, even public relations are important to inform the incident to the data subject. Logical access control are user and password or a biometric, or there are some other example as well. Protect information asset, enforce policies and
Logical access control can reduce the risk. Logical control, network control है, application control है, operating system control and database protections. Where to enforce? Where to enforce these access control are your desktop, your application, your network, your laptop, your remote access, your VPNs. जहाँ से आप अगर entry point बना रहे हो to your enterprise network या वो communicate कर रहा है either a passive entry point, तब भी वहाँ पर enforce किया जाता है access control को. Auditor responsibility is to ensure the effectiveness of the access control, effectiveness and efficiency of that access control. Actually, आप इस तरह से समझे. Prevent loss and protect system from compromise or failure. Identification and authorization. Identification is to identify the user using some process. Secure registration process होना चाहिए. Unique identifiers होने चाहिए. एक ही user को multiple user को एक identifier नहीं मिलना चाहिए. It should be unique. Prevent unauthorized user from gaining access. Prevent authorized user from gaining improper access and session timeouts. And authentication, validate the identity. Authentication में identity को validate किया जाता है that what you know, what you have, and what you are. Strong authentication versus password. Strong authentication is 2FA, and there is a rule of changing the password after a periodic period of time. That periodic period should be short, and there should be no shared account. अब पासवर्ड हैं, पासवर्ड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं that it should be upper and lower case and special character include होने चाहिए. It should not be shared with anyone. Resistant to brute force and dictionary attack. Change of scheduled basis. Prevent reuse of the old password and password recovery. Token generated password. Right now अब इसका थोड़ा सा usage कम हो गया, but still it is in the use. आप अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का या मिजान बैंक का अगर आप बिजनेस अकाउंट खुलवाते हो तो that device they will give you for generation of token to log in to web banking. Token generated password is a one-time dynamic password, synchronous and asynchronous challenge response time or event based on something you have. Something you have mean you have password, आपने password enter किया है, second password जो आपका 2FA वो यहाँ आ रहा है on the token e-token password पास में, या आपके पास जो थर्ड डिवाइस है टोकन जनरेटेड डिवाइस है उसके ऊपर एक एप्लीकेशन आती है दैट इज Gemalto. Gemalto इज अ विंडोज एंड लाइनक्स बेस्ड एप्लीकेशन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इंस्टॉल कर सकते हो. दैट इज यूज्ड फॉर 2FA or 3FA even of for the passwords to log in the servers or log in some desktop. उसके लिए जो आपका 2FA कॉन्फ़िगर हो जाता है वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे या iOS मोबाइल पे भी कॉन्फ़िगर हो सकता है. बायोमेट्रिक्स, व्हाट यू आर, इसमें आपका बायोमेट्रिक्स में आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर एज वेल एज बिहेवियरल दोनों बेस पे आप बायोमेट्रिक्स चेक कर सकते हैं. बिहेवियरल में आपके जैसे बायोमेट्रिक में वॉइस कमांड से अगर कोई चीज़ खुल रही है तो वो भी चीज़ है. दैट साइकोलॉजिकल में थंबप्रिंट्स या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कर रही होती है. यूज़ ऑफ बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक के यूज़ एनरोलमेंट प्रोसेस है, टाइम टू प्रोसेस, स्टोरेज ऑफ द सेंसिटिव डाटा, यूज़र रेजिस्टेंस एंड प्रॉब्लम उसमें वहाँ आती है जब आपके कट या स्कार वाली चीज़ आ जाती है. आपका अगर थंब प्रिंट से हो रहा हो, थंब अगर किसी वजह से जख्मी हो जाए तो उसके बाद वो ऑथेंटिकेट नहीं करता. These are the problem with biometric as well. Type of biometric, it should be fingerprint, hand or palm prints,
आयरिस, फेस और डीएनए, दीज आर साइकोलॉजिकल और बिहेवियर में जो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, दैट इज की स्ट्रोक्स, सिग्नेचर और वॉइस। वॉइस कमांड है, सिग्नेचर है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न से हो रहा है, या की स्ट्रोक में अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे आपके पास प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो आपकी वो पासवर्ड टाइपिंग स्पीड से भी जज कर रहा होता है। Kerberos identity management. It's a single sign-on solution for distributed computing environments. Time-based tickets must be highly available. Federated identity management and SAML एंड ऑथेंटिकेशन OAuth यूजर होता है। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपकी माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी है, मतलब डोमेन कंट्रोलर है। डोमेन कंट्रोलर यूज Kerberos फॉर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जिसमें आप एक दफ़ा टिकट Kerberos का तो खैर बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, ये तकरीबन 2.5-3 घंटे के अंदर कवर होता है, लेकिन आपको एक सिंपल इसकी एक स्टोरी बता दूं तो वो ये है कि क्लाइंट एक्सेस ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट करता है, उसकी बेस पे उसे क्लाइंट टीजीटी मिल रहा होता है, टीजीएस मिल रहा होता है। अगेन वो अपने पास जो क्लाइंट के पास आ रही होती है चीज़, उस बेस पे दोबारा वो सर्वर के पास जाता है, तीसरे एट्रेशन पे और चौथे एट्रेशन पे उसे एक्सेस मिलती है। और जो ऐसे एक्सेस के टोकन मिल जाते हैं वो सेम एक्सेस के टोकन यूज करते हुए उसके ऊपर जितनी भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज हैं उनसे वो सर्विस ले सकता है। तो Kerberos की सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपकी डोमेन कंट्रोलर की है। चैलेंज विद एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस बियॉन्ड द करंट यूजर नीड। एक्सेस कंट्रोल के सबसे बड़े प्रॉब्लम तब आते हैं जब किसी भी यूज़र को बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट एक्सेस दे दी जाती है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, अगर इसको रेक्टिफाई करने के लिए देयर शुड बी अ प्रोसेस, देयर शुड बी अ practice even to frequently monitor and review the excesses. May be enforced consistently, local rules and lack of separation of duties. Controlling access. Access can be controlled on the physical location, on the remote access. Remote access में आप VPN की एग्जांपल ले सकते हैं। Ability to bypass the control. कंट्रोल को बाईपास भी किया जाता है। कंट्रोल को बाईपास करने के लिए देयर आर सेवरल मेथड एज वेल। वायरलेस के चक्कर में तो बड़ा इजीली कर लिया जाता है। अगर आप एक्सेस लेना चाह रहे हो टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क तब भी है, बट देयर आर सम सॉल्यूशंस टू प्रोटेक्ट दैट एज वेल। अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑडिटिंग। दैट सिंपल सी बात है इसमें कि इफ यू कैन ग्रांट सम एक्सेस टू समबॉडी, तो वो उसके सारे एक्शन इट शुड बी अकाउंटेड। इवन डिपेंड ऑन जो आपका लोअर लेवल का स्टाफ है, अगर उसके पास रीड ओनली एक्सेसेस भी हैं तो रीड ओनली एक्सेसेस को भी नोट किया जाता है कि हाउ मैनी फाइल्स ही और शी इज ओपनिंग, आइदर उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी थी कि जो उसने ओपन किया या नहीं थी। एसोसिएट एक्टिविटी विद द यूज़र आईडी, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ लॉग हो रही होती हैं विद द यूज़र आईडी, और अगर फॉर एग्जांपल मेरा आईडी मिसयूज़ होगा तो कोई भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, रिकॉर्डिंग अब तो आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट कोई सोल्यूशन आ गए हैं, लाइक नोकिया नयाम है, क्रॉनटेक है, देयर आर फ्यू अदर, साइकोटिक है, वो तो आपके पास वीडियो लॉग भी लेके आते हैं और इवन टेक्स्ट बेस्ड लॉग भी लेके आ रहे हैं। एंड देन लॉगिंग, protection of logs. Logs are important for the forensics investigations and may contain sensitive information. Attacker may try to cover their tracks. Should be time stamped. टाइम स्टैम्प बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिफरेंट को रिलेट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉग्स को, तो उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी यूनिक फॉर्मेट पे टाइम और यूनिक क्लॉक टिक पे टाइम नहीं लेके आ जाते, सबका शिफ्ट नहीं करते, तो you will be in a problem to investigate some event. Review to note unauthorized behaviors.
ऑडिट लॉग मैनेजमेंट, ऑडिट लॉग रिडक्शन टूल्स, ऑडिट लॉग रिडक्शन टूल्स में आप फिल्टर कर लेते हो ताकि आप स्पेसिफिक लॉग लेके आओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप किसी भी अगर डिवाइस के या किसी भी सिस्टम के लॉग को सिर्फ पढ़ना शुरू कर दें, देयर आर थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ लॉग, ट्रांजैक्शन लॉग हैं उसके अंदर, देयर आर ऑपरेशनल लॉग, फंक्शनल लॉग, हर तरह के लॉग्स हैं। तो आपको फिल्टर डाउन करके सिर्फ अपनी मर्जी के लॉग्स लेके आने पड़ते हैं। ट्रेंड वायरस वेरिएंस एंड डिटेक्शन एंड सिग्नेचर अटैक डिटेक्शंस। साइंस सॉल्यूशंस, साइंस सॉल्यूशन में आपके पास जो लॉग है, लॉग सोर्स जिसे कह रहे होते हैं, आइदर इट इज एंड यूजर मशीन, आइदर इट इज सर्वर्स और आइदर इट इज सम नेटवर्क डिवाइसेस। ये लॉग सोर्स आपके इवेंट कलेक्टर कलेक्ट कर रहा होता है। इवेंट कलेक्टर करता है लॉग एट द रेस्ट को, जो भी लॉग रेस्ट पे होंगे उसको, और फ्लो कनेक्टर करेगा लॉग फ्रॉम द फ्लो, मतलब जो डाटा फ्लो कर रहा है उसके ऊपर से वो लॉग कलेक्ट कर रहा होता है। इसकी डिटेल के लिए यू कैन रेफर सम क्यूरेडार वीडियोस और इवन स्प्लंक, उसकी भी लेक्चर्स देख सकते हैं फॉर द डिटेल थिंग। यहाँ पर क्यूरेडार की टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं, स्प्लंक की टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफर करती हैं, जिसमें फॉरवर्डर, इंडेक्सर और ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। देन आपके पास इवेंट प्रोसेसर आता है, फ्लो इवेंट कलेक्टर और फ्लो कलेक्टर के बाद, और उसके ऊपर एक डैशबोर्ड का सेटअप आता है। दिस इज अ वेरी सिंपल साइंस सॉल्यूशन। इसके ऊपर बहुत सारी एनहेंसमेंट भी हुई हैं। आप जो करंट आर्किटेक्चर हैं जो वो देख सकते हैं ओवर द इंटरनेट। इम्पैक्ट ऑफ लॉगिंग, लॉगिंग जब भी आप लॉग एनेबल करते हो, देयर इज एन इम्पैक्ट, that is impact of performance of the system, impact for the cost that organization is bearing for that specific tool, overwhelming amount of data, and impact of administrators time. What to watch for, आप साइंस सॉल्यूशन में भी इवन सारी चीज़ें नहीं देखना शुरू कर देते। देयर शुड बी सम प्ले बुक्स। जब आप प्ले बुक रन करते हो तो वहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, आपने अलर्ट भी कुछ डिवाइसेस पे लगाए होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इवेंट पे लगाए होते हैं, कुछ डिक्शनरीज बनाई होती हैं, उस बेस पे आप कर रहे होते हैं। की एरिया दैट इंडिकेट सीरियस प्रॉब्लम, अनयूजुअल एक्टिविटीज देख रहे थे, पैटर्न और ट्रेंड। पैटर्न लर्न कैसे करता है, जब भी किसी डिवाइस को लर्निंग मोड में लगाया जाता है तो वो उसका ट्रेंड पैटर्न लर्न कर लेती है। अगर उससे डेविएट करता है बिहेवियर तो ट्रिगर जनरेट हो रहे होते हैं उस पर। रिपीटेड वायलेशन एंड इनकरेक्ट पासवर्ड इज अ मैट्रिक्स टू चेक दैट, एंड स्ट्रेंज लॉग इन टाइम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायलेशंस, वायलेशन जब भी की जाती है, इट शुड बी नोटिफाई, इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी एस्केलेटेड टू समबॉडी। contain and preserve the evidence, evidence should be contained, evidence should be preserved, determine the severity। डिसिप्लिनरी एक्शन अगर कोई लेना है तो HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेस्ड ऑन द फीडबैक्स, रिव्यू प्रोसीजर एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड। क्या कोई भी वायलेशन है, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द हायर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी फॉर द डाटा डिलीशन, डाटा डिलीशन के लिए आपके पास डाटा रिटेंशन की कोई पॉलिसी एंड प्रोसीजर होना चाहिए। रिटेंशन पॉलिसी है बिजनेस, इट इज बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट एज वेल एज द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सिक्योर डिस्पोजल प्रोसेस होना चाहिए, और फ्रॉम इवन फ्रॉम द ओल्ड और रिटायर्ड इक्विपमेंट आपको डाटा वाइप आउट करना होता है। अब डाटा वाइप आउट करने के लिए देयर आर सेपरेट पॉलिसीज, देयर इज अ सेपरेट ISO स्टैंडर्ड फॉर डाटा स्टेरिलाइजेशन एंड डाटा वाइपिंग। उसके ऊपर एक ISO ने कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। Auditor responsibility, auditor responsibility is to ensure that staff has adequate trainings, like अगर वो नेटवर्क पे बैठा है उसके पास स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेंस बिल्ड है। इसी तरह क्रॉस टीम में बैठा है, उसकी क्रॉस टीम में भी उसके पास कॉम्पिटेंसी पूरी अवेलेबल होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड जॉब रोटेशंस, आप एक स्पेसिफिक बंदे की सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क का बंदा है, वो किसी पॉइंट पे खुद लगा के बैठ गया, एनी का एक
रूल लगा के बैठ गए। वो उसके ज़हन में है कि जब ऑडिट आएगा तो देखी जाएगी, और इस वे में उसको क्रॉस चेक करने के लिए सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ का एक कंट्रोल है, और इवन जॉब रोटेशन का भी एक कंट्रोल है। क्रॉस ट्रेनिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपको एक दूसरे के काम का पता होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है। इस वे में आप अवेयरनेस दे रहे होते हो टू द स्टाफ। ऑडिट ट्रेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक्शन, रिव्यू ऑफ एक्सेस प्रिविलेज बाय एडमिनिस्ट्रेटर, educate capacity, bandwidth, redundancy, and review remote access. Then the topic is of virtualization. Virtualization एक लंबा चौड़ा topic है. We have some tools for the virtualization जिसमें market demanding आपके पास Citrix है, VMware है, VirtualBox है, there are several. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपके पास हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, देन आपके पास एप्लीकेशन की लेयर है। बट ऑन द वर्चुअल आर्किटेक्चर आप देखोगे तो आपके पास हार्डवेयर की है, उसके ऊपर वर्चुअल लेयर, वर्चुअलाइजेशन लेयर आती है। वर्चुअलाइजेशन लेयर इज एक्चुअली हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर के ऊपर आपके ओएस बिल्ड होते हैं, ओएस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन आती है। अब तो थोड़ा सा और एडवांस हो गया ऑन द डेवऑप्स, और ऐसी चीज़ों के आने के साथ साथ आपके पास वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर कंटेनर्स बिल्ड होते हैं। कंटेनर्स में मतलब जो दरमियान का ओएस पार्ट है वो मिस हो जाता है, वो इसकी फंक्शनैलिटी अपने होस्ट से ले रहा होता है। खैर दिस इज़ अ लॉन्ग टॉपिक फॉर वर्चुअलाइजेशन, इस पे अलग से डिबेट हो सकती है। Virtualization has some risk of improper configurations and attack at the hypervisor level। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे तो है ही है, बट अगर हाइपरवाइजर लेवल पे हो गया तो इसका मतलब है हाइपरवाइजर के ऊपर जितनी भी मशीन्स बिल्ड हैं वो सारी की सारी ऑन द स्टेक होती हैं। there is performance issue, there are the possibilities of data leakage between the processes। internet security, internet is never built on the principle of the security। uh, internet जब build हुआ, it has a global access and no guarantee of delivery, but by the time internet को secure किया जा रहा है, even secure DNS जो है DNSSEC, अब उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी जगह आ चुकी है। जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तो आपका इंटरनेट भी काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाएगा, बट राइट नाउ इंटरनेट इज़ नॉट मच सिक्योर। डिप्लॉइंग अ सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क। सिक्योरिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क को डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले रिस्क की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको डेवलप अ पॉलिसी, क्लासिफाई सिस्टम एंड डाटा एंड हार्डन द एक्सटर्नल सिस्टम। Then is firewall and its uses. Firewall is the device to protect the unwanted traffic, for unwanted attack, for being into the network, into the internal private network. That is why we are using firewall. Type of firewall, that is packet filtering, application firewall, stateful inspection, and next generation firewall. Internet architecture is based on screen host firewalls, that is layer defense, dual home host, separate network, and demilitarization, DMZ, that is demilitarized zone. Isolation of network for the public from your internal network। एक पार्ट को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट उस तरह नहीं किया जाता, मतलब एक डीएमजी में रखा जाता है और डीएमजी के पीछे भी एक फायरवॉल लगाई जाती है ताकि आपके पास जो सिक्योर जोन में डेटाबेसेस पड़ी हैं, सिक्योर साइट पे पड़ी हैं, उस तक आपकी इंटरनेट की ट्रैफिक ना जाए, या इवन एप्लीकेशन लॉजिक तक भी ना जाए। इशू रिलेटेड टू द फायरवॉल। फायरवॉल कभी कभार फॉल्स सेंस भी कर लेती हैं। कमेंट ऑफ फायरवॉल, misconfiguration of firewall, lack of monitoring, inability to detect some attack. These are some of the things, but right now अब तो बहुत अच्छे and most powerful firewall भी available हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल जिसे कहते हैं वो पैकेट फिल्टरिंग में और ऐसी चीज़ों में बड़ी हेल्प करती है।
which is an essential part of the network. IPS and IDS. It can be a host base जिसे HIPS कहते हैं, और it can be a network base जिसे NIDS कहते हैं. यहाँ पर हमारे पास सिग्नेचर की पैटर्न मैचिंग हो रही होती है, स्टेटिस्टिकल बेस आ रही होती है. अगर कोई एनॉमली बेस्ड प्रॉब्लम आ रही हो, न्यूरल है, ह्यूरिस्टिक बेस अगर कोई हिस्ट्री वाइज अगर कोई स्पेसिफिक पैटर्न चलता आ रहा हो और उस पैटर्न से डेविएट हो रही हो ट्रैफिक, तो तब भी आपके होस्ट बेस और नेटवर्क बेस इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन सिस्टम ट्रिगर जनरेट करते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन. Encryption is converting a message into a format that cannot be understood by unauthorized parties. Convert plain text into the message of ciphertext using some algorithms. अब ये काम क्या करता है, आप नीचे अगर फिगर को देखें, आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पब्लिक की से वो साइफर टेक्स्ट बन जाएगा. अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो प्राइवेट की से आप रिवर्स करते हो टू द प्लेन टेक्स्ट. It can protect the confidentiality of message, protect the integrity of the message, prove authentication to the sender and receiver, provide non-repudiation, and support access control. Then the topic is of malware. Malware can be of many types. It can be viruses, trojans, rootkit, worms, spyware, crimeware, adware, ransomware. There are many things. प्रिवेंटिंग द मेलवेयर, इसके लिए आपके पास कोई पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, और कोई ना कोई आपके पास एंड पॉइंट का सिक्योरिटी सॉल्यूशन है डिप्लॉय होना चाहिए. और फिर भी आपके पास देयर आर सम सैंड बॉक्सेस लाइक virustotal.com टू चेक some file is suspicious or not or some link is suspicious or not. यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है. Any questions? ये किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें. आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, डोमेन 3 से, वो जो पहले रिकॉर्डेड लेक्चर था. तो डोमेन 3 से ठीक जी जी, डोमेन 3 में वो जो 2 लेक्चर्स हैं उसके बाद काफ़ी सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, लाइक दैट. तो उसके लिए हम कोई सेशन करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे. डोमेन 3 को कवर करने के लिए हम लेक्चर कर लेंगे. आदिल, अगर आप उसमें टॉपिक आइडेंटिफाई कर दो तो फिर करवा दूंगा. मैंने सोचा हुआ था, हमने बात की हुई थी आपस में. जी सर. पहले हम कोशिश करेंगे 4-5 क्लोज करके, उसका जो अगर आप हमें तब तक आइडेंटिफाई कर दो टॉपिक्स तो फिर हम वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वो अली नुमान साहब ने किए हुए. जी सर. तो साकिब भाई कर देंगे, आप अगर आइडेंटिफाई करते हो क्या मिसिंग. राइट सर. उसमें एक टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं इनको भेज दूंगा, या आप इनको डायरेक्टली भेज देना. राइट सर. राइट, मुझे भेज देना बस कि ये टॉपिक्स होने चाहिए, तो मैं हम आपस में कर लेंगे कोऑर्डिनेट इंशाल्लाह. राइट सर. और दूसरी बात ये कि वो जो स्लाइड्स यहाँ पे लिंक पे शेयर की जाती हैं वो ओपन नहीं होती हैं, वो लोडिंग एरर कह देता है कोई ना कोई. कहाँ से ये जो आप लिंक शेयर करते हैं या जो वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी है वहाँ से भी नहीं होती है. तो मुझे शो मैसेज डाउनलोड हो जाती है इमीडिएटली. वो तो बेसिकली वो लिंक जो है वो पेज का लिंक है, उस पेज पे जाकर आपको उस बटन पे क्लिक करना होगा. राइट सर. मैं दोबारा ट्राई करूंगा, फिर आपको ट्राई कर लेना, मैं तो ट्राई करके किया हुआ सारा. राइट सर. राइट, थैंक यू. ठीक है सर, कोई और सवाल नहीं तो मैं क्लोज करता हूँ. थैंक यू. आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई है, कोई नेट का प्रॉब्लम था, स्टेबल नहीं था, तो रिकॉर्डिंग शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हो, क्योंकि बीच में कई दफ़ा ये सेशन मेरे लैपटॉप पे बंद हुआ फिर दोबारा स्टार्ट हुआ. तो मेरा ख्याल है मैं देखूंगा क्या हो सकता है, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते. ओके, टेक केयर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.